لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے۔ محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے۔ کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اس میں صحیح بات کیا ہے، واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے۔ اس میں افراط و تفرید بہت ہے، مبالغہ آرائیاں بہت ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے۔ جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹاتی، غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا، مگر غیرت پر سودا نہیں کیا۔ تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے، اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں۔ دیکھو مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں۔ ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی۔ یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی۔ تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے، ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے، ہم نے طاقت دے دی ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے۔ بین الاقوامی لاء تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو یہ ہوگا، عمر قید ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں نہ 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 نہ، کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے، حکومت اس میں تعاون کرے گی، قصاص تو یہی لے گا۔ حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا، بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے، حکومت کا یہ کام ہے۔ حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن، کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے، بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا۔ جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کسی کے غلام نہیں ہے، کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا، حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے، عدل و انصاف فراہم کرنا ہے۔ دنیا نے کیا کیا؟ قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے۔ وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے، کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی، انسان کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے، سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں۔ عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا، ریاست کا غلام بنا دیا۔ شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا، بیوی پہ خرچ کرتا، بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو، ایک ڈھیلا بھی تم پہ، ہمیں ٹیکس دو، 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا، 1 لاکھ کما رہے ہو 40,000 ہمیں دو، ہماری مرضی، پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں، یہ ہماری مرضی، ہمارا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں ہے یہ۔
इस्लाम रिलेशन का कायल है। रिलेशन शौहर बीवी का रिलेशन है। शौहर बीवी पे खर्च करेगा ताकि बीवी उससे मोहब्बत करे। बेटा बाप पे खर्च करेगा ताकि बाप अपने बच्चों को शौक से पालेंगे, ये बुढ़ापे में हमारा सहारा है। आपने सारे रिलेशन खत्म करके लोगों को गुलाम बना दिया, किसका? रियासत का। उसी में यही है कि इस्लाम कहता है किसी के बाप को कत्ल किया गया है, इंतकाम की आग किस में भड़क रही है? गवर्नमेंट में थोड़ी भड़क रही है। हुकूमत का क्या लगता है भाई? वो अच्छा भला तमीज से बयान चल रहा था, मोहब्बत से गुस्सा आ गया मुझे, आराम से चल रहा था ना। यही है ना, ये लिबरल लोगों से हमें वास्ता पड़ता है ना, सुबह शाम गोरों के गीत गाते रहते हैं बैठ के, मगरिबी ममालिक के गीत गाते हैं। इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम। वो क्या खाक सिस्टम है यार ये, जिसमें इंसान को उसके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। आप कह सकते हैं हमारे मुल्क में कौन सा मिल रहे हैं, तो हमारे मुल्क में इस्लाम ना होने की वजह से मिल रहे हैं। इस्लाम होता तो मिल रहे होते। इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों का कसूर है। डॉलर नीचे आ गया सुना, थोड़ा सा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए नीचे आएगा, 20 रुपए ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा डिप्रेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट करती है कि थोड़ा सा नीचे लाके धक्का दे के ऊपर लेके जाओ। तो ये सेटअप, खैर ये एक अलग तबसरे हैं। तो इस्लाम है जो आपको बुनियादी हुकूक देता है। मेरे बाप को अल्लाह ना करे कोई कत्ल कर दे, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? मेरा इंतकाम की आग मुझ में भड़कती है। उसका नुकसान ये होता है कि मैं कातिल को तलाश करूंगा, वो ना मिले उसके भाई को मार दूंगा, वो ना मिले उसके मामू को मार दूंगा, जो होता है कबाइली इलाकों में। इस्लाम ने इस पे पाबंदी लगा दी। ना 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 ना। अल्लाह कहते हैं फक़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन, देखो हमने तुम्हारे जज्बात का ख्याल किया है, हमने तुम्हें ताकत दी है कि कातिल से बदला लोगे तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। अब जब हमने तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया तो अब हद से तजावुज ना करो। क्या मतलब? कातिल के अलावा किसी और से बदला लेने की कोशिश ना करो। उसने आपका एक मेहमान मारा, आपने कहा हम उसके 2 मेहमान मारेंगे, ये काम। वो एक पंजाब वाला चला गया ना, पंजाब वाला चला गया वजीरिस्तान में, वहां कबाइली लड़ाइयां हो रही थी, तो वो कहीं बाहर उसको चारपाई पे सुला दिया उन्होंने। तो उसको डर लग रहा है यार, इनकी तो दुश्मनी अठा अठा की रात को आवाजें आती, मुझे को मार पूर के ना चला जाए। उसने दरवाजा बजाया, भाई मुझे अंदर सुला। उसने कहा क्यों, घबरा क्यों रहा है? उसने कहा मुझे डर है आप लोग की दुश्मनी में मैं ना मारा जाऊं। उसने कहा फिक्र ना करो, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, खुदा की कसम उसका 10 मेहमान मारेगा। उसने कहा उसका तुम 10 मारो 20 मारो, हम तो मर गए ना, हम तो गए काम से। तो देहाती इलाकों में चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अंदरून सिंध हो, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो, यही होता है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ क्या है? कातिल न मिले तो जो मिले उसको मार दो। कुरान इससे मना कर रहा है। ना 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 ना। देखो हमने तुम्हें राइट दिया, गवर्नमेंट नहीं देती है ये। गवर्नमेंट कहती है नहीं, इतने लंबे केसेस चलते हैं, मुकदमे चलते 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 फिर जज पैसे खा के। ऐसा भी होता है, जो जजेस बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो इंसाफ नहीं मिलता इंसान को। उम्र कैद तो है ही नहीं इस्लाम में, लंबी जेल में डाल दिया, वो और बड़ा मुजरिम बन के आएगा। वो खाने पीने से गया। यहाँ कितना अच्छा कानून बनाया कि कातिल पकड़ के हुकूमत क्या करेगी? बाप को मारा है तो बेटे के हवाले, शोहर को मारा है तो बीवी के हवाले, ले भाई अपने मियाँ का बदला ले ले। और अगर दियत लेके छोड़ना चाहे तो इसका भी ऑप्शन तेरे पास है, दियत ले ले, छोड़ दे इसको। फिर कुरान ने दियत की तरगीब दी, वमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन, जिसको अपने भाई की तरफ से माफी मिल गई। यानी अल्लाह मकतूल के वारिस को कह रहे हैं कातिल भी तुम्हारा दीनी भाई है, तो भाई समझ के छोड़ दो। तरगीब दी है, जबरदस्ती नहीं की इस्लाम ने। हालांकि अल्लाह तो जबरदस्ती भी कर सकता है ना कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह कह रहे मैं ऐसे कानून क्यों बनाऊं? हालांकि वो खुदा है, उसको हम पे हक है, फिर भी वो कह रहा है कि ऐसे कानून क्यों बनाऊं कि इंतकाम की आग बढ़ गई इनके दिल में। खुदा जब हमारे जज्बात की रियायत कर रहा है तो गवर्नमेंट कौन होती है जो रियायत ना करे? भाई अल्लाह हुकूमत से बड़ा है कि नहीं है? उसको हम पे ज्यादा कुदरत है। तो कुरान ने क्या कहा? तरगीब दी कि इसको क्या करो, माफ करो। बेहतर ये माफ कर दो, दियत ले लो, पैसे लेके छोड़ दो, इससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी तलाफी हो जाएगी। ऐ अल्लाह, इससे तो हम अगर दियत लेके छोड़ेंगे ये तो गैरत के खिलाफ है। हमारे बाप को मारा, वो क़यामत में कहेगा कि पैसे लेके छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, ये दुनिया का सजा है, आखिरत में कातिल को माफ नहीं करूंगा। दुनिया में तो कातिल से किसास ले भी लिया जाए ना, गर्दन उड़ा भी दी जाए, तो उसका जुर्म थोड़ी माफ होता है, इसलिए कि जिसको मारा है उसने तो बदला अभी लिया नहीं है। देखें जब कोई कत्ल करता है 2 नुकसान होते हैं, एक तो जो बंदा मारा उसका नुकसान वो गया, दूसरा उसके लवाहिकीन का नुकसान। तो अभी तो लवाहिकीन की तलाफी हुई है, जो बंदा गया है उससे तो आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? अभी मैंने मुहर्रम पे बयान करना है, लेकिन ये किसास की बात दरमियान में आ गई। मैं ये बताने के लिए कि हर चीज का एक ज़ाब्ता है, लॉ बयान किया है इस्लाम ने। तो कुरान क्या कह रहा है? कातिल को फला युस्रिफ फिल कत्ल,
ہم نے اجازت دے دی ہے تو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو. نمبر 1 حد سے تجاوز کیا ہے, جس نے قتل کیا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کی کوشش نہ کرو. تو جی اس کا چاچا آ گیا تو اس کا ماموں آ گیا تو اس کا خالو آ گیا, اس کو اڑا دیا. نہ نہ نہ. نمبر 2 قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو, اس کو تڑپا تڑپا کے مت مارو. تبھی حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف, قصاص لیا جائے گا تلوار سے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا, دیکھی ہوں گی آپ نے, اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے, جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا فوراً ختم, تکلیف کا احساس ختم. ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی, قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی, کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا, ختم. تو وہ تکلیف کیسے محسوس کرے گا, لیکن دہشت بہت ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے, اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے, وہ مقصد پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لیکن جو اسلام مخالف قوتیں, ان کا قانون کیا ہے, بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی ہے بھائی. ایک صاحب سعودی عرب سے آئے, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا, گردن اڑائی, تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے, وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے. بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں, بہادر بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی مجھے, میں کیا کر رہا ہوں, ایسے کانپ رہا ہوں میں. تو بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا؟ لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصاً, اس کو تکلیف بولو کم سے کم. لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں, پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو, آپ اپنا گلا گھونٹیں تھوڑی دیر کے لیے, اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے, 0, کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان, جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے, اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا, اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو, چھوڑ دو, ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے, چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو, بولو نا معاف. اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو, اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے, لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو, تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا, معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت, یار نہیں بول رہے ربی بھائی, پولیس لے کر آؤ. جملہ آپ کو جو ہے سینٹنس جو ہے جملہ کمپلیٹ کیا کریں, جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 1.5 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاؤ, یہ عمر پراٹھوں کی نہیں ہے, کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی. لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہوں تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے. پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو, دوپہر کا کھانا نہ کر دو. کیا خیال ہے اس کی تلافی اس طریقے سے, پراٹھے چھوڑ دیں, دنیا چھوڑ دے آدمی, ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے. کھائے تو مزے کی چیزیں نا. ڈاکٹر لوگ جو ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں اس میں تو انسان کے زندگی کے مزے, آپ دیکھو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل آ رہے ہیں کہ صبح یہ کھائیں, پالک کے اتنے پتے کھا لیں. ہم بکری کو کھلاتے ہیں پالک کے پتے, اتنا پودینہ, اس میں اتنے ٹماٹر ڈال کے چاٹ بنا کے کھا لیں اس کو. اور پھر دوپہر کو آپ نے تھوڑے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ, یہ کھا لیں 2 انڈے, اور یہ رات کو آپ تھوڑا سا گوشت, وہ بھی نمکین بالکل سوکھا. اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے بھائی, ایسی صحت کے اچھے کر کے کیا ہے یار, زندگی لمبی ہو جائے گی آپ کی. پتے کھا کے 90 سال جینے سے بہتر ہے گوشت کھا کے, انڈے کھا کے, پراٹھے کھا کے 50 سال میں یا 40 سال میں مر جائے آدمی. میں خود صحت کا قائل ہوں کہ انسان کو پھوڑنا پھاڑنا نہیں چاہیے, صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جلدی سے ایک چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں میں. صحت بنانا ہے, کم کھاؤ, محنت زیادہ کرو, بس یہ بڑا بہترین معتدل سا اصول ہے. کھاؤ کم. اب ہم نے صبح پراٹھے پھوڑے ہیں تو دوپہر شاٹ ٹھیک ہے نا. جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی تو نہیں کھائیں گے ہم. رات کو تو بہت ہی کم کھاؤ, کیونکہ سونا ہوتا ہے تو توند بھر کے سو گے تو پھٹو گے ایک دن دھماکے کے ساتھ. پھٹ رہے ہیں لوگ, یہ تو بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں نا, بندہ کھا کے پھٹا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے, تو وہ بندے جس طرح سے کھا رہے ہیں نا لوگ اسپیڈ میں,
तो रात कहते हैं ना, सुबह खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर खाओ, पता नहीं पूरा मलफूज भूल गया मैं, सुबह खाओ नाश्ता बादशाहों की तरह करो, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है उस वक्त, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। दोपहर खाओ कुछ अलग से है, कुछ जुमला मालदारों की तरह थोड़ा कम कर लो, और रात को खाओ फकीरों की तरह, जैसे मिला ही नहीं खाने को। हमारे यहाँ उल्टा है, सुबह एक स्लाइस ब्रेड में ना डुबो के खा रहे हैं, बस एक अंडा, दोपहर को थोड़ा बढ़ा दिया और रात को फोड़ते हैं, उसको खाना कहते ही नहीं है, फिर सो जाते हैं। तो उल्टा चल रहा है। माहिरीन कहते हैं ना कि सुबह ज्यादा खाओगे फिर दोपहर कम और रात को और कम, तो बॉडी भी ऐसे हो जाएगी। और अगर उल्टा चलाए ना, सुबह कम दोपहर ज्यादा, तो बॉडी भी कैसी हो जाएगी, ऐसे ऊपर से चलना शुरू हो गया, ऐसे फूलते चले जाओगे। खैर कहां से बात चली गई, तो मैं किसास की बात कर रहा था, ये बात दरमियान में आ गई, मुहर्रम पे आऊंगा इंशाल्लाह अभी। तो अर्ज ये कर रहा था कि देखो कितनी हिकमतें हैं ना इस्लाम की, कोई दीन इस्लाम जैसा है नहीं, हो नहीं सकता। तो उसमें माफी का भी चांस ज्यादा है कि कातिल को माफ करने का ऑप्शन उसमें ज्यादा है। जब खुलेआम होगा तो इंसान का दिल नरम हो जाता है, चल भाई छोड़ दिया मैंने, लोग भी उसको तरगीब देते हैं, तकलीफ कम से कम है जिससे किसास लिया जा रहा है। अच्छा, एक और फायदा क्या है, दुनिया में लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, बड़े बड़े माहिरीन बहस करते हैं कि यार अगर हम कातिल को कत्ल कर देंगे, फांसी दे देंगे, तो एक बंदा तो मरा ही है इंसान, उसके बदले में एक और को हमने मार दिया, तो ये कौन सा कमाल कर लिया। समझ में आ रही है बात? यानी कत्ल को रोकने के लिए एक और बंदे को कत्ल कर देना, ये कौन सा कमाल है। दुनिया में जो लोग भी फांसी की सजा के खिलाफ है ना, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो ये दलील देते हैं कि जुर्म को रोकने के लिए बंदा कत्ल होने से बचाओ, कत्ल होने से बचा के जुर्म से रोको उसको। समझ में आ रही बात? भाई जैद ने बकर को कत्ल किया, अब दुनिया के माहिरीन कहते हैं बकर एक इंसान है ना, दुनिया से चला गया, मजीद दुनिया से इंसान ना जाए इसके लिए इंसान ही को खत्म कर देना, ये कौन सी लॉजिक है। तो जैद को हम कत्ल नहीं करेंगे, पनिशमेंट होगी, सजा होगी, ताकि वो कत्ल से बच जाए, वरना बंदा मारने के लिए बंदा ही मार देना, ये ऐसे जैसे गुर्बत खत्म करने के लिए गरीबों को खत्म कर देना। भाई गुर्बत खत्म करने के एक तरीके सारे गरीबों को इंटरनेट बंद करके बम से उड़ा दो, गुर्बत क्या हो जाएगी, खत्म। तो वो ये दलील देते हैं कि यार इंसानियत को कत्ल से रोकने के लिए एक इंसान ही को कत्ल कर देना, क्योंकि जैद ने बकर को मारा, गलत किया, तो जैद भी तो बकर जैसा है ना, जितना कीमती बकर का खून उतना ही कीमती जैद का खून, तो इसको कत्ल नहीं होने देंगे हम। ये इंसानों की लॉजिक है जो खुदा के कानून के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान ने इस लॉजिक का जवाब दिया है, ये पहले भी लोग थे इस तरह की बातें करते थे। कुरान ने कहा वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ अक्लमंदो, वो लोग जिनकी अकल सही काम करती है, सुनो, हम जो कह रहे हैं कि कातिल को कत्ल कर दो, तो इस कत्ल में इंसानियत का कत्ल नहीं है, इंसानियत की बका है। एक मारोगे करोड़ों बचेंगे, और अगर इनको जेल में डाल डाल के छोड़ते रहोगे ना, तो कत्ल दुनिया में खत्म होने के बजाय बढ़ेगा। और ये जो तुम्हारी लॉजिक है कि बकर का खून जितना कीमती था जैद भी उतना ही कीमती है, इस लॉजिक का जवाब ये कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जाता है। जैद का खून कीमती है, मगर इतना नहीं जितना मासूम लोगों का खून कीमती है। उन मासूमों के खून की ज्यादा कीमत है, कातिल के खून की अल्लाह की नजर में कीमत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बेकीमत खून को बहाने से कीमती खूनों की हिफाजत हो जाएगी। तो अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, जो मैं असल बात अर्ज कर रहा था। अब क्या है, मैं असल मौजू की तरफ आता हूं दोबारा। अल्लाह ताला ने मुहर्रम भी दिया हमें, सफर भी दिया हमें, रबीउल अव्वल भी दिया हमें पिछली कौमों के वाकयात भी सुनाए, यहूद व नसारा के। कुरान कहता है यहूद व नसारा ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया, लहव लइब। क्या मतलब लहव लइब बना लिया? जिन अहकामात को फोकस किया गया था ना तौरात और इंजील में, उन अहकामात से गाफिल हो गए और अपनी तरफ से अहकामात गढ़ गढ़ के उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है बात? यहां तक के उनमें भी फिर इख्तलाफात शुरू हुए, किसी ने कहा ये सही है, किसी ने कहा ये गलत है। इख्तलाफ होते 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 हदीस में आता है 72 फिरकों में डिवाइड हो गए। वो कितने फिरकों में? 72। क्योंकि जब नई नई चीजें इजाद की है ना, तो नई चीजों की ब्रेकें क्या होती हैं? बोलो, फेल। मसलन आपने कहा रबीउल अव्वल में हम यूं भी करेंगे, नबी के नाम पे ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो भाई जब आप दिन मना रहे हैं तो कुछ लोगों ने कहा फिर केक भी काटेंगे, प्रॉपर सालगिरह मनाएंगे। कुछ ने उसकी मुखालफत की, कुछ ने हिमायत की। मुखालफत करने वालों के पास भी कोई दलील नहीं है, इसलिए कि जिस बेस पे आप मुखालफत कर रहे हो कि ये सहाबा से साबित नहीं है, तो जो आप कर रहे हो वो कहां से साबित है? तो टुकड़ों में बंटना, फिरकों के अंदर फिरकियां निकलना शुरू, फिरकों के अंदर फिरकियां।
پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے، اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز۔ اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں، 12 کو نماز ثابت نہیں ہے۔ اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے، تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے، وہ فرقے سے فرقیاں، فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں، وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز، کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے، ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73۔ اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے آگے نہ ہوتا تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے، پاگل ہو جاتے نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے، کون سا لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے، گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے، کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے، چپلوں میں، کرتوں میں، ٹوپیوں میں، بغیر ٹوپی والے۔ پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے، میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی، ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ۔ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ٹوپی نہیں پہنو، وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے، ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی۔ تو فرقے در فرقیاں، یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے، فرقی یہ ہے نہیں عربی میں، یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے مولانا ہوتے ہیں نا، ہمارے سمے تو مولانا کا مطلب مولانا، مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا، اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی، جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو، تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں، نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے، یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں، ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ۔ ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے، نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا، آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے، پھر نبی تسلی بھی دیں گے، اور خوف پیدا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں، سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں۔ لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ہم کہتے کوئی بات نہیں یار، 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں، تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے۔ یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے۔ کلہم فی النار، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ صرف ایک کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ صحابہ علم پر حریص تھے، انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا۔ نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا، یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ، وسیم نام کا آدمی ہوگا، صرف اسی کو دینا۔ اب مجمع میں ایک وسیم ہے، سلیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ایک یعقوب ہے، ایک یوسف ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک سب کو لگ رہی ہے، مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے، شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے، پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے، تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں۔ اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے، ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے، سب وسیم بن جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا، اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین، اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ اور دیکھو یہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے، اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین۔ او بھائی نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا۔ نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا۔ آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا۔ پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل۔
तो 1975 से पहले मुसलमान में जो सही फिरका था वो तो उसका तो कोई जमातुल मुस्लिमीन का नाम नहीं था, वो कहाँ जाएगा फिर। मैंने पेशावर में बयान किया, मैंने उन लोगों से कहा देखो जो इस्लाम सदियों पहले पेशावर में आया था ना वही सही है। अब अगर कोई तुम्हें कुरान और हदीस के नाम पे वरगला रहा है कि हम सही इस्लाम लाए, हम कुरान और हदीस, तो उनसे बोलो 1200 साल पहले क्या आया था पेशावर में, फिक़ह हनफी आया था ना। तो अब थोड़ी इस्लाम आ रहा है, सारी किताबों में लिखा है इस्लाम पेशावर में 1000 साल 1200 साल पहले आया, तो वो क्या आया था और अब क्या आ रहा है। उस पे एक मौलाना ने मेरे खिलाफ बयान किया कि अहले हदीस तो इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में भी थे। मुझे अहले हदीस से इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है, मैं उनको अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल समझता हूँ, चंद इख्तलाफात के साथ। वो मेरे इख्तलाफात हैं, वो इल्मी नौयत के इख्तलाफात हैं। बाकी उनमें जो मुतशद्दिद हैं, वो गुमराह हैं, जो मुतदिल हैं, उन पे हम वो फतवा नहीं लगाते जो हम दूसरों पे लगाते हैं। लेकिन ये दलील मोहतरम की सही नहीं है, इसलिए कि आप जो इमाम अहमद बिन हंबल से साबित कर रहे हैं कि उन्होंने कहा अहले हदीस जन्नत में जाएंगे, उससे वो फिरका अहले हदीस मुराद नहीं है, उससे वो लोग मुराद है जो हदीस को फॉलो करते हैं। तो अबू हनीफा भी हदीस को फॉलो करते थे, इमाम शाफी भी फॉलो करते थे, अब इमाम अहमद बिन हंबल भी फॉलो करते थे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये कि इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलोवर्स को अहले हदीस नहीं कहा जाता बल्कि हंबली कहा जाता है, हालांकि वो तो अहले हदीस हैं, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल खुद अहले हदीस है, तो उनके फॉलोवर्स को हंबली क्यों कह रहे हो फिर। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। तो आज लफ्फाजी है, अल्फाजों से खेला जा रहा है, अल्फाजों से, नामों से किया जा रहा है। नामों से नहीं होता। वो कहते हैं ना मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। चावल की बोरी पे लिखा हुआ है, चीनी की बोरी पे लिखा हुआ है चावल। एक आदमी ने दुकान में चीनी की बोरी है, लिखा हुआ क्या है चावल। किसने बोला चीनी है, लिखा हुआ चावल क्यों। कह रहे मक्खियों को धोखा देने के लिए। मक्खी धोखे में आएगी, मक्खी लेबल देख के कभी भी धोखे में नहीं आती, वो खुशबू देख के जाती है। हमारे नबी से सहाबा ने पूछा कि उस फिरके का नाम बताएं, आपने नाम नहीं बताया क्योंकि सब लेबल अच्छा लगा के धोखा देते। आपने उस फिरके में जो खुशबू है उसको बताया कि उसमें खुशबू क्या आ रही होगी, उसमें जो अलामतें हैं वो क्या हैं। जहां स्मेल आ रही हो नबी और सहाबा की, उस स्मेल की तरफ चले जाना, और जहां नबी को लुगत से निकाल दिया या नबी को तो रखा हुआ सहाबा को निकाल दिया, उसके करीब उसके लेबल और नाम को देखकर जाने की कोशिश ना करना। आज हमारा लोग खून पी लेते हैं, कई तलाकें दे रहे हैं, 3-3 तलाकें। जिसको देखो सऊदी अरब के बिन बाज का फतवा, सालेह अल उसैमीन का फतवा, इन 2 मुफ्तियों का फतवा कि भी सऊदी अरब ये कह रहा है कि 3 तलाकें एक होती हैं। मैं कहता हूं तुमने कलमा सऊदी अरब का पढ़ा है या नबी और सहाबा का कलमा पढ़ा है। कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो, और मैं दर्जनों दिखाऊंगा आपको। यार आप लोगों ने सहाबा से भी ज्यादा सऊदी अरब के उलमा को बना लिया है। ये तो 15वीं सदी के उलमा है। वो कहते हैं वो हदीस कोट करते हैं, उस हदीस का मतलब सहाबा ने क्या समझा, किसी एक सहाबी ने उस हदीस का वो मफहूम लिया जो सऊदी उलमा ले रहे हैं। मैं सऊदी उलमा के खिलाफ नहीं हूँ, हमसे ज्यादा बेहतर होंगे, हमसे तकवा में लिल्लाहियत में उलमा का अदब हमारे लिए जरूरी है। मगर आपने जब तकलीद करनी है तो आप सऊदी उलमा की करोगे या सहाबा की? सहाबा की करोगे आप फिक़ह हनफी को नहीं मानते, आप शाफी को नहीं मानते, सहाबा को तो सब मानते हैं ना। कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो। हत्ता कि जो सहाबी 3 को एक कहने वाली हदीस बयान कर रहे हैं वो भी 3 को कितनी कहते हैं? 3 कहते हैं। इसका मतलब उस हदीस का वो मफहूम नहीं है जो बिन बाज मुराद ले रहे हैं। ऐसे तमाशे हो रहे हैं ना तलाकों के बाद आजकल। शोहर तलाकें देता है, बीवी अपनी मर्जी का फतवा, बीवी को रहना है तो अहले हदीस से फतवा ला रही है, नहीं रहना तो हनफियों से फतवा लेके आ रही है। कुरान ने जहां तलाक के मसाइल बयान किए वहां अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयात को, अल्लाह के हकाम को मजाक ना बनाओ। अहले हदीस हजरात उलमा की इंतहाई इज्जत के साथ, लेकिन मैं ये अपना रोना मैं उनके सामने रोता हूं कि आप लोगों की वजह से तलाक के अहकाम मजाक बन चुके हैं इस वक्त। आप इस पे दोबारा से तहकीक करें। इसलिए हम कहते हैं लोगों को मुजतहिदीन को फॉलो करो, उनका इल्म आज के मौलवियों से ज्यादा, वो कुरान और हदीस को आज के लोगों से ज्यादा बेहतर समझते थे। हम कुरान हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो नहीं करते, खूब समझ लो। हमारा ये राय है, फतवा है, जो सही हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो करेगा काफिर हो जाएगा। गुमराह तो दूर की बात है। बात ये होता है कि हदीस का एक तशरीह अबू हनीफा कहते हैं, एक तशरीह आपकी नजर में होती है। हम उस तशरीह को तरजीह देंगे जो अबू हनीफा की राय होगी। आपकी राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह दे रहे हैं, नबी की राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह नहीं दे रहे। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुरान और हदीस पर अबू हनीफा को तरजीह देगा अल्लाह की कसम काफिर हो जाएगा वो। हमारा मौकिफ 2 और 2 4 की तरह है, लेकिन बात ये आपके कहने से नहीं हम करेंगे। आपकी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी। अबू हनीफा की भी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी, लेकिन उसमें गलती का इम्कान कम, आप में गलती का इम्कान ज्यादा है। तो तलाक सलास में तो 4 अइम्मा मुत्तफिक हैं। ये तो ताबीन तबा ताबीन के दौर के हैं, सारे सहाबा मुत्तफिक हैं।
आपको हदीस मिल गई, कैसी बात है भाई। मैं एक अहले हदीस आलिम के पास गया, मैंने फतवा दिया था 3 तलाकें वाक़ हो गई हैं। वो साहब ले आए अहले हदीस से फतवा। मैंने उनसे कहा कि आप तकलीद करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तहकीक करता हूं। मैंने कहा चलो फिर मैं अहले हदीस आलिम के पास चलता हूं। अब तहकीक की दुनिया में हम देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। आपने तो तहकीक करनी है ना, तकलीद तो करनी नहीं है। लेकिन ये कर रहे तकलीद ही होते हैं, लेबल तहकीक की, क्योंकि तहकीक फिर पूरी होती है, अधूरी नहीं होती। मैं उन अहले हदीस के पास गया, बड़े एहतराम से बैठा। मैंने कहा हजरत आपने फतवा दिया है, इसकी दलील दें। उन्होंने सही मुस्लिम की मशहूर हदीस पेश कर दी। नबी के दौर में 3 एक समझी जाती थी, अबू बकर के दौर में। मैंने कहा ऐसे तो मुता के बारे में भी आता है, नबी के दौर में मुता जायज समझा जाता था, अबू बकर के दौर में उमर ने पाबंदी लगाई, तो फिर मुता भी हलाल है। कह रहे नहीं, उसके तो मनसूख होने की दलील है। तो मैंने कहा इसके भी मनसूख होने की दलील है, अधूरी हदीस ना बताएं, दूसरी हदीस भी बताएं। फिर वो कहने लगे, मैंने कहा फिर खुद इस हदीस के जो रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 3 तलाकें एक वक्त की 3 होती हैं। तो वो जवाब में कहते हैं कि हमने कलिमा अब्दुल्ला बिन अब्बास का नहीं पढ़ा, हमने कलमा नबी का पढ़ा है। मैंने कहा वेल डन, हजरत मुझे ये बताएं कि आपने नबी का कलमा पढ़ा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किसका कलमा पढ़ा था? उन्होंने नबी का कलमा पढ़े बगैर ये फतवा दे दिया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि लफाजी है, समझ रहे हैं, लेबल अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। बाकी हर चीज में मैं अहले हदीस को गलत नहीं कहता, बास चीजों में सही है वो, और बास चीजों में देवबंदी गलत, मादरत के साथ। इल्ला ये कि देवबंदियों के जो मुहक्किकीन हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, वो ऐसी गलतियां नहीं करते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो गए, इस लेवल के जो उलमा हैं ना, वो मुतदिल हैं। वो आपने देवबंदियत को समझने के लिए हर आदमी को फॉलो नहीं करना, हर एक का बयान आप यूट्यूब पे सुन के फतवा लगा दो कि ये ऐसा नहीं है भाई। बाज लोग क्या करते हैं, देख के चावल जैसे थोड़े से चखे आपने और पूरी देख पे हुक्म लगा दिया। बाज लोग क्या करते हैं, किसी स्कॉलर ने कोई गलत बयान, मसला गलत बयान किया, फौरन कोई फितना परवर बैठा होता है, उसका क्लिप चलाता है, देखो देवबंदी क्या कह रहे हैं। ओ भाई, ये एक पूरा देवबंदी ठेकेदार थोड़ी है ये बंदा कि जो बोलेगा आपने सब पे थोप दिया उसको। मैं तो आपको फिर भी देवबंदी बरेलवी की बहस में, ये तो लोगों ने मशहूर की हुई है, हमें तो हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि अपने नाम के साथ ना देवबंदी लगाओ ना बरेलवी। मेरे नाम के साथ लगाया था, मैंने हटवाया है लोगों से। ये भी हमारे अकाबिर की तालीमात हैं। क्यों? जो फिरका जन्नत में जाएगा उस पे लेबल से नबी क्या कह रहे हैं उसके मुतासिर ना हो। अब नबी फरमा देते, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, कौन सा फिरका जन्नती नाजिया निजात पाने वाला कौन सा होगा? तो हमारे नबी का हम पर यह एहसान कि आपने वो नाम नहीं, आप अगर कहते अहले हदीस होंगे तो जुम्मे की नमाज में टांगे चौड़ी करके पढ़ाता, मैं जोर से आमीन कहता। ऐसा ही है ना। हमारे नबी कहते कि वो हनफी होंगे तो जितने अहले हदीस हैं वो क्या बन जाते, सारे हनफी बन जाते। हमारे नबी कहते कि वो हरी पगड़ी वाले होंगे, अब तो उन्होंने भी सफेद कर दी पगड़ी, तो हम सब हरे हरे होते यहाँ पे। क्या ख्याल है? पगड़ी भी हरी होती, और अब मुझे नहीं पता उनका क्या क्या हरा होता है, अल्लाह बेहतर जाने। और क्या हरा होता है? पेन हरा होता जी, कंघी हरी होती है, शुक्रिया जी, ट्यूबलाइट हरी। अच्छा खैर, नबी फरमाते वो देवबंदी होंगे, तो सब लोग अपने नाम के साथ क्या लगाते? देवबंदी। नबी ने नाम, नबी फरमाते वो शिया होंगे, तो सब क्या बने होते? हम मुहर्रम में काले कपड़े पहन के बैठे होते, सब अपने आप को शिया साबित करने में लगे होते। नबी ने अलामत बताई ताकि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, नामों से मुतासिर ना हो, नाम कुछ भी हो। अव्वल तो हमारा नाम मुस्लिम रख दिया है कुरान ने, तो हम सब क्या हैं? मुस्लिम है, जिसको उर्दू में मुसलमान कहा जाता है। हमें किसी और शनाख्त की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सवाल पैदा होता है फिर ये मशहूर कैसे हो गए देवबंदी बरेलवी? मैं बार बार कहता हूँ ये लोगों ने नाम दिए हैं आसानी के लिए। मिसाल के तो ये लोग क्यों नाम देते हैं? आप कहीं रिश्ता लेने के लिए जाएं, लड़की वाले आपका कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हैं कि ये मिलाद शरीफ वाला है, तीजे 40 में वाला है, रबीउल अव्वल में प्रोग्राम वाला है, या ये वाला नहीं है। अब वो पूरी डिटेल पूछे तुम्हारा अकीदा क्या है, पूरी डिटेल के बजाय शॉर्ट नाम रखा हुआ। भाई जो ये करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है, जो ये नहीं करते उनको क्या कहा जाता है? देवबंदी। तो इन शॉर्ट वो उन्होंने, क्योंकि मुसलमान तो दोनों ही कहलाते हैं ना। एक साहब मुझे कहने लगे आप हनफी क्यों हैं, आप मुस्लिम क्यों नहीं है? मैंने कहा हम हनफी शाफी के मुकाबले में हैं, गैर मुस्लिम के मुकाबले में हम मुस्लिम हैं। हम देवबंदी बरेलवी के मुकाबले में कहलाते हैं, गैर मुस्लिम के मुकाबले में थोड़ी हम देवबंदी हो, तो मुस्लिम है। तो अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम गैर मुस्लिम के मुकाबले में रखा है। बाकी नाम भी हमने नहीं रखे, पब्लिक ने अपनी आसानी के लिए रखे, फिर वो मशहूर हो गए। वरना ना देवबंदियत में कुछ है ना बरेलवियत में कुछ है। असल में तो वो अलामत जो नबी बयान कर रहे हैं, वो अलामत जिसमें पाई जाएगी, ख्वाह वो देवबंदियत के नाम से हो, अहले हदीस के नाम से हो, बरेलवी के नाम से हो, शिया के नाम से, सुन्नी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो वही देना चाहिए मुस्लिम। लेकिन मैं बता रहा हूं लोग अपनी आसानी के लिए नाम देते हैं। किस मकतबे फिक्र से आपका ताल्लुक है, ताकि इन शॉर्ट बात हो जाए ना। तो नाम नबी कुरान ने हमें मुस्लिम दिया, और अलामत क्या बताई? सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या कौन सा फिरका? आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी,
क्या बलागत है यार इस कलाम में, सारे फिरकों का पोल पटियां खोल दी। आपने ये नहीं फरमाया जो कुरान को फॉलो करेगा, ये नहीं फरमाया, क्योंकि हर फिरका निस्बत कहाँ करता है, क्योंकि कुरान तो सबकी बेस है ना, कुरान ही से निकल गए। क्या ख्याल है भाई, एक फिरका मुसलमानों में आए और क्या मैं तौरात को मानता हूँ कुरान को नहीं मानता हूँ, तू तो है ही नहीं, तू तो किसी खाते में है ही, निकल यहाँ से। बेस तो कुरान है और कुरान को मानना भी जरूरी, उसको फॉलो करना भी, लेकिन फिरकों में जब फर्क किया जा रहा है तो कुरान का तस्करा नहीं। मा अना अलैहि, जिस पर मेरा अमल, मैं चलूं, तो नबी जिस पर चले उसको तो हदीस कहा जाता है। और ये भी नहीं फरमाया हदीस, क्योंकि हदीस कौल, आम तौर पर हदीस का इतलाक कौल पर होता है। बुखारी में एक रिवायत आ गई, मुस्लिम में एक रिवायत आ गई, लोग इसको हदीस समझते हैं। नबी का जो प्रॉपर अमल रहा है, किस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके गए हैं, उसको आजकल के लोगों ने हदीस से खारिज कर दिया। मिसाल के तौर पर इमाम मालिक हदीस लेकर आते हैं हाथ बांध के नमाज पढ़ने की, फतवा देते हैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी जाए। मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, एक साहब तकरीर कर रहे थे उर्दू में, सारे फितने वहां उर्दू स्पीकिंग जाके फैलाते हैं, अरब में नहीं आमतौर पर ये तशद्दुद। उससे किसी ने पूछा कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना कैसा है, उन्होंने कहा बिल्कुल नाजायज, बिदअत। क्यों, हदीस में आता है हाथ बांध के नमाज, हम हदीस को फॉलो करेंगे, इमाम मालिक को फॉलो नहीं करेंगे। इतनी सख्ती से इमाम मालिक पे रद्द किया। मैंने कहा इस जगह इमाम मालिक ने कई साल बैठ के दर्स दिया है, इसने उनकी शख्सियत का भी एहतराम नहीं किया। अवाम ये मैसेज लेके जा रही है कि कुरान और हदीस का इसको पता है, इमाम मालिक को पता नहीं था, हालांकि वो तो तबा ताबीईन में से हैं। हदीस में आता है अनकरीब एक शख्स पैदा होने वाला है मदीना में, जिसकी तरफ पूरी दुनिया से इल्म के लिए लोग आएंगे। अक्सर उलमा इस तरफ गए, उससे मुराद इमाम मालिक हैं, अक्सर उलमा इस तरफ गए। इतने बड़े आलिम का मजाक उड़ा दिया आपने। आप यूं कह सकते थे कि हदीस में आता है कि हाथ बांध के नमाज, इमाम मालिक ने देखा कि मदीना वाले हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम मालिक ने इससे दलील पकड़ी कि इन्होंने सहाबा को देखा होगा, और सहाबा ने किसको देखा, नबी को। तो अगरचे बांधने का तस्करा है, लेकिन नबी का आखिरी अमल क्या था, हाथ छोड़ के। तो इमाम मालिक की राय में ये दलील है, वो कह रहे हैं कि हदीस में तो हमें बांधने का तस्करा मिलता है, लेकिन जो अमल मिल रहा है हमें प्रैक्टिकली, जो तवातुर मिल रहा है वो छोड़ने का मिल रहा है। तो अमली तवातुर को वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कौली हदीस से, तो वो भी हदीस ही पर अमल कर रहे हैं। फिर आप एक राय बयान कर देते कि भाई उनकी राय भी ठीक है, दलील उनकी भी बनती है, लेकिन हम हदीस के जाहिर को देखते हैं, भाई बांधने का तस्करा है, तो हम कहते हैं नबी ने जो छोड़ के नमाज पढ़ी होगी, हो सकता है वो किसी उज़र से पढ़ी हो, या हो सकता है कि जी वो आसानी के लिए, ये बताने के लिए कि ये भी जायज है। तो अदब का तकाजा ये कि बांध लिए जाएं। लेकिन अगर कोई इमाम मालिक की राय को फॉलो कर रहा है तो हम उसको भी बुरा नहीं कहेंगे। ये अंदाज होता तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आजकल के स्कॉलर्स जो कुरान हदीस के ठेकेदार बने हुए हैं, उनका ये स्टाइल बोलो नहीं है। उनका ये स्टाइल है कि हदीस मुझे आती है, बाकी सारे जाहिल हैं। ये तो इमाम मालिक के बारे में अगर वो पूछ लेते ना रफुल यदैन का मसला इमाम हनीफा का, फिर तो एकदम आग निकलना शुरू हो जाती। जो स्टाइल इमाम मालिक का था कि मदीना में मैंने लोगों को हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हुए पाया है, रफुल यदैन ना करने के बारे में वही दलील किसकी है, इमाम अबू हनीफा की, कि कूफा इल्म का मरकज था। कूफा में अब्दुल्ला बिन मसूद और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के आके आबाद हुए। ये दोनों सहाबा इल्म में दूसरों से बहुत ज्यादा थे। इनके शागिर्द जितने भी कूफा में थे रफुल यदैन नहीं करते थे। इमाम अबू हनीफा ने इससे इस्तेदलाल किया कि ठीक है बुखारी मुस्लिम तो इमाम हनीफा के बाद आई है, लेकिन सही हदीसें रफुल यदैन करने पर भी हैं, लेकिन ये जो आखिर में नहीं कर रहे इतने सारे सहाबा, तो ये इसकी अलामत है नबी ने आखिर वक्त में तर्क कर दिया था। आप इस दलील पे आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये दलील समझ में नहीं आती, मेरी राय ये कि क्योंकि बुखारी में है तो हम रफुल यदैन करेंगे। ठीक है, आपकी नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, हम तो मानते हैं नबी ने किया है। लेकिन अगर अबू हनीफा अहले कूफा और सहाबा ताबीईन जो उनके शागिर्द थे उनके अमल से इस्तेदलाल करते हुए ना करने का फतवा दे रहे हैं, आप उनकी नमाज को बोलो खिलाफे सुन्नत है, इसका मतलब आप अपनी राय को दूसरे पर थोपना चाहते हैं। इमाम तिरमिजी जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, जब रफुल यदैन करने का जिक्र किया ना उन्होंने, आप तिरमिजी में देख सकते हैं अरबी में, तो उसमें कहते हैं वबिही यक़ूलु बाज़ु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, रफुल यदैन करना बाज़ अहले इल्म सहाबा की राय थी। जब रफुल यदैन ना करने का तज़किरा किया है तो फिर लिखते हैं वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, यही अहले इल्म सहाबा में बहुत सारे लोगों की राय है। ये कौन कह रहे हैं, इमाम बुखारी के शागिर्द, हालांकि वो खुद भी रफुल यदैन के कायल थे, लेकिन दलील में सहाबा की जब बात आ रही है तो क्या कह रहे हैं। तो मैं आपसे इस कर रहा हूं कि हर मुहद्दिस हर मुज्तहिद का अपना एक उसूल होता है, और उसका बुनियादी मकसद किसको फॉलो करना है, नबी को फॉलो करना। तो आप सिर्फ कौली हदीस ले रहे हो, नबी का अमल नहीं देख रहे, ये मिस्टेक है। तो नबी ने पहली अलामत क्या बयान की, मा अना अलैहि
बोलो ना वो असहाबी, जिस पर मैं हूं, जो मेरा अमल है जिस पर, तो ये नबी का अमल था। अब इस अमल में इख्तलाफ हो सकता है, कोई कह रहा है हाथ छोड़ के नमाज का अमल था, कोई कह रहा है हाथ बांध के नमाज का अमल था, कोई कह रहा है रफुल यदैन का अमल था, कोई कह रहा है ना करने का अमल था, आखिर अमल। ठीक है, ये इख्तलाफ शरीयत में नापसंदीदा नहीं है। इस इख्तलाफ की बेस पे फिरके नहीं बनते, कोई बनाएगा तो वो जहन्नमी है। और ये इख्तलाफ सहाबा में भी था, क्योंकि दोनों में वो अलामत पाई जा रही है, मा अना अलैहि। कामयाब फिरके की अलामत क्या है? जिस पर नबी का अमल। तो नबी का अमल दोनों पर है ना, तो इसमें आप दोनों में से किसी को भी गलत बोलो ना यार। ना हाथ बांध के नमाज पढ़ने वाले को, ना हाथ छोड़ के, ना रफुल यदैन करने वाले को, ना करने वाले को, क्योंकि दोनों के पास दलील है, दोनों मकतब है फिक्र की, और दोनों कहां से साबित करते हैं? नबी से। तो इस बेस पे जितना भी इख्तलाफ हो, उस इख्तलाफ से जन्नत और जहन्नम का फतवा नहीं लगता। समझ में आ रही है बात? अगली बात, नबी यहाँ कह के रुके नहीं, सिर्फ मा अना अलैहि। अगर आप रुक जाते तो हम सहाबा को बीच से निकाल देते। हम कहते हैं हदीस में क्या आ रहा है, बस नबी ने फरमाया व असहाबी। क्यों? अब देखो तरतीब क्या है। आपने कुरान का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि कुरान की लोग ऐसी तशरीह करेंगे जो नबी की तशरीह के खिलाफ। जैसे गामदी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बहुत सारी तशरीहात ऐसी करते हैं कुरान की जो हदीसों के खिलाफ जा रही हैं। नबी ने शादीशुदा जानी मर्द को रजम किया है, सारी दुनिया जानती है, मुतवातिर रिवायात हैं। वो कुरान की आयत की तशरीह करते हैं कि जानी मर्द और औरत को 100 कोड़े मारो। वो तशरीह ऐसी कर रहे हैं जिसमें शादीशुदा को भी शामिल कर रहे हैं, हालांकि ये कंवारों के बारे में नाजिल हुई है। हदीस से पता चलता है, मुतवातिर हदीस से। तो नबी ने क्या फरमाया? कुरान का तस्करा क्यों नहीं डायरेक्ट अपने अमल को पेश किया, ताकि लोग कुरान की वो तशरीह ना करें जो मेरे अमल के, सिर्फ मेरी हदीस नहीं, मेरे अमल के भी खिलाफ हो। और अमल भी नबी का असल में हदीस ही कहलाता है। दो किस्में, कौली और एक फेली। आपने एक अमल किया, साहबा ने सीना बसीना उस अमल को नकल किया, ये भी हदीस है, चाहे बुखारी में ना भी हो, चाहे मुस्लिम में ना भी हो। दूसरा, आपने उन लोगों पे रद्द करने के लिए जो हदीस की तशरीह अखपल तरीके से करें और उसमें सहाबा को बीच से निकाल दें, उनको निकालने के लिए आपने क्या फरमाया? मेरा और मेरे असहाब का अमल। समझ में आ रही है बात? मेरे और मेरे असहाब का अमल। क्या मतलब? ऐसे फिरके आएंगे जो कुरान की तशरीह अखपल तरीके से करेंगे, हदीस को बीच से निकाल देंगे, ये भी जहन्नमी, चाहे वो अपने आप को सुबह शाम अहले कुरान कहते हों। लेबल जो मुनकिरीन हदीस हैं, उनका पता है अपने फिरके का नाम क्या रखा है? अहले कुरान। और जब आप उनके सामने बैठोगे, कुरान के फजाइल बयान करना शुरू कर देंगे, बार बार कुरान क्या कहते हैं, अल्लाह का कलाम। मकसद कुरान की फजीलत नहीं होगी, मकसद हदीस का इनकार होगा। समझते होगे नहीं समझते? लोग मुतासिर होते, यार ये माशाल्लाह अल्लाह के कलाम को कितना फोकस करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना इनके दिल में अल्लाह के कलाम का जलाल है। ओ भाई, ये जो आपके सामने सुबह शाम कुरान के फजाइल बयान कर रहा है, इसका मकसद हदीस की नफी है। एक आदमी कर्जा मांगने के लिए आया और आपसे कह रहे सिफारिश कर दें कि वसीम भाई मुझे कर्जा दे दें। दूसरा भी आ गया कर्जा मांगने के लिए, आप चाह रहे हो इसको न मिले, इसको मिल जाए। आपको पता है ये सेठ एक ही आदमी को देगा। अब आपने दूसरे की बेपनाह तारीफें शुरू कर दी, तो ये तारीफों में जिम्नन दूसरे की क्या है? बुराई है। ये बंदा ठीक नहीं है, इसको नहीं दो, ठीक है ना। लेकिन नाम परवेजी फिरके ने अपना नाम क्या रखा हुआ है? अहले कुरान, अहले कुरान। तो इसी तरह जब हदीस, नबी ने हमें पहले बता दिया, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हदीस की तशरीह ऐसी करेंगे जो सहाबा की समझ में नहीं आई। नाम कुछ भी रख सकते हो आप, अहले हदीस रख सकते हो आप, अहले कुरान रख सकते हो आप, देवबंदी रख सकते हो आप, मोहम्मदी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अमल देखा जाएगा प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। भाई सहाबा क्यों नहीं, सहाबा का फतवा ये क्यों नहीं है? और उन सहाबा में भी आपने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया खुलफाए राशिदीन को। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। मैं दावे से कहता हूँ, खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक मस्जिद दिखा दो जिसमें रमजान में 8 रकत तरावी होती हो। कोई ज़ईफ सनद दिखा दो मेरे भाई। आप बुखारी मुस्लिम की हदीस है जो 8 रकत वाली, उसकी तशरीह ऐसी कर रहे हैं जो सहाबा में किसी की समझ में, बोलो, नहीं है। इसका मतलब आपकी तशरीह गलत है। बाज लोग कहते हैं हजरत उमर से एक ज़ईफ रिवायत पेश करते हैं कि उसमें 8 का तस्करा मिलता है, वो ज़ईफ रिवायत है। मान लो तो सहाबा को नबी ने हुक्म दिया उमर को फॉलो करो ना, तो अगर हजरत उमर ने 8 पढ़वाई थी तो फिर पूरी दुनिया में हमें 8 मिलती क्यों नहीं है? कूफा में, बसरा में, दिमिश्क में, मिस्र में 8 से ज्यादा क्यों मिलती हैं हमें? आज लोग कहते हैं मक्का मदीना में 8 हो रही हैं। भाई आज का मक्का मदीना लोगे या 1200 साल 1300 साल पहले का मक्का मदीना लोगे? आज लोग कहते हैं सऊदी अरब में 3 को 1 कहते हैं। ओ भाई सऊदी अरब में आज कहते हैं ना, 1400 साल से सऊदी अरब में 3 को 3 ही कहते थे। तो 1400 साल से जो इस्लाम था वो वाला सही था या आज जो इस्लाम है वो वाला सही है? खोपड़ी काम नहीं कर रही लोगों की, यानी अजीब
ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو, وہاں تو مصر میں بھی 3 طلاق کا 1 ہو گئی ہے, سوڈان میں بھی 3 1 ہو گئی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں قانونی. اور میں نے کہا یہ اب ہو رہی ہیں, اسلام آج آئے 1400 سال پہلے آیا تھا, اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا, اب تک 3 3 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں 8 تراویح ہو رہی ہے, آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا 20 پڑھ رہے ہو. کب سے شروع ہوئی ہیں 8؟ آپ 100 150 سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, پوری دنیا میں 20 سے کم کہیں بھی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی تھی. تو بعد میں چینج ہوئی ہے. اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب تو چینج اب تھوڑی لوگ. عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے, اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. زندہ لوگ بک بھی جاتے ہیں, ان کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں, سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں, حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے. اب حرمین میں کہہ رہے ہیں 10 رکعت تراویح ہو گئی. بھائی کیا پتا بادشاہ نے ایک آرڈر دیا ہو کہ 10 ہوں گی. ہمارے ایک دوست نماز فجر کی نماز کا ٹائم داخل اقامت ہو رہی, بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی نماز کھڑی ہو رہی ہے, مسجد نبی پڑھو. کہنے پتہ نہیں کہ ایسا نہ عمر ملک ہو, بادشاہ کا حکم ہو وقت سے پہلے پڑھنے کا, تو میں پہلے اپلیکیشن میں دیکھ لوں ٹائم داخل بھی ہوا کہ نہیں ہوا. خیر وہ تو تھوڑا انہوں نے غلو کر دیا, لیکن وہ ڈر گئے تھے نا یار, کیسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت میں کچھ بھی حکم دے دیا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ٹائم سے پہلے نماز پڑھنے کا آرڈر دے دے. لیکن آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہو کہ یہ عرب علماء کا فتویٰ ہے؟ اگر چند کا ہے بھی تو ہمارے لیے ان کے احترام کے باوجود وہ فتویٰ حجت نہیں ہے. اب میں آخری بات جو محرم پہ لے کے چلا تھا, میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اصل تو میرا ٹاپک یہ تھا محرم. تو میرے بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے, محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے. نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی. میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا. اور یہ جو 4 ائمہ ہے نا, انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے, صحابہ کو. اس لیے امت کہتی ہے 4 ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی 1 سے ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے, 4 متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتی ہو نا, نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا. تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء, کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے, یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا, غموں میں رونا پیٹنا, ماتم کرنا, اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے. اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر. واویلا کرنا, رونا پیٹنا, چیخنا چلانا, یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے, فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے. غم کے موقع پہ روئے ہیں, غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے, ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا. غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے, اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے, ماتم کی اجازت نہیں ہے. این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں, نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا کے چھیڑیں, تنگ کریں. ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقوارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے, مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو, آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. آپ کے اصول کچھ اور ہیں, ان کے اصول کچھ اور ہیں, ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں. جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے. آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آج لوگ کہتے ہیں فرقواریت ختم ہو جائے, میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی, نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے, کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے, اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے کہ ان میں صحیح کون ہے, میں وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی, تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو. کئی رشتہ آیا آپ کے لیے, بہت ساری لڑکیاں ہیں, آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو. او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ اس سے شادی کر لو, بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو. اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے, تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو, باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلا سے آپ اس کو مار دو, کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, ابا اس کو مروا دو. ابا کہے گا بیٹا تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں, تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے, جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے, وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں, ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے, اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت, ہمیں بم پھاڑنے کی, تلوار چلانے کی, گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, ہم ملتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, السلام علیکم.
मजहब पे बहस नहीं करते हम, क्यों? हमें पता है खाम खा के झगड़ा होगा, जो सीखने आना चाहे बात कर लेते हैं उससे हम। तो हम नफरतों के कायल नहीं है, ना हम तशद्दुद के कायल है, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आप फैसला करो कि आप हो किस कैटेगरी में। हमारी हदीस हमें ये बताती है, हमारे नबी हमें ये बताते हैं कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और सहाबा का तरीका। हमारे नबी पे मुहर्रम भी आया, सहाबा पे मुहर्रम भी आया, जो उन्होंने किया हम भी वही करेंगे। हमारे नबी की जिंदगी में रबीउल अव्वल आया, सहाबा की जिंदगी में खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में आया, जो उन्होंने किया हम, बोलो ना, वो करेंगे। उन्होंने क्या किया? सबर किया है। गम के मौके पे क्या किया है? सबर किया है। तो हम भी क्या करेंगे? सबर। या हमें इजाजत दी है कातिल से किसास लें। हजरत हुसैन के कातिल अगर आज हमें मिल जाए, हम इंशाअल्लाह उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब नहीं है हमारे पास, हमारे दौर में नहीं है, तो अल्लाह से हम दुआ करते अल्लाह उनसे इंतकाम ले क़यामत के दिन। हजरत हुसैन के खून का बदला ले अल्लाह उनसे, और लेगा, अल्लाह क्यों छोड़ेगा। लेकिन अगर हमने इस हुदूद से तजावुज करके हमने वो कुछ किया जो अल्लाह उसके रसूल की मंशा के खिलाफ है, तो मेरे भाई जहां कातिलों से सजा ली जाएगी, अल्लाह हमें भी नहीं छोड़ेगा। कि ये कौन सी अहले बैत की तालीमात थी जिस पर तुम अमल कर रहे हो। सफेद लिबास इस्लाम में पसंदीदा है, ठीक है, नबी ने हर रंग का लिबास पहना है, पसंद किसको किया? सफेद को। वो मुहर्रम में भी पसंदीदा, वो सफर में भी, वो रबीउल अव्वल में। जैसे ही रिश्ता मुयस्सर हो, इस्लाम हुक्म देता है निकाह में ताखीर ना करो, चाहे मुहर्रम हो। मुहर्रम है तो सफर तक डिले ना करें, सफर में रिश्ता मिला तो रबीउल अव्वल तक डिले ना करें। वैसे भी मेरे भाई जिसने 4 शादियां करनी होंगी, वो अगर डिले करना शुरू कर दे तो उसकी हो गई। फिर इस्लाम में तो ये कि जल्दी निकाह करो, मुहर्रम में भी करें। जो नहीं कर रहे उनको छोड़ दे, अपने उनका फिरका है, उनका मसलक है, छेड़े नहीं किसी को, जाके बहस ना करें। दफ्तरों में बहसें खामखा की शुरू हो जाती हैं। आपने अपने बारे में फैसला करना है, मैं किधर हूँ, मैं किधर खड़ा हूँ। जो काले कपड़े पहनने दें, ना उन पे तंज करें, ना उन पे हूटिंग करें, ये जायज नहीं है, इससे नफरतें पैदा होंगी। जो कर रहा है करने दो। आपके बच्चे जब पूछे अब्बू उन्होंने काले कपड़े पहने, बोले बेटा उनका फिरका है, हम लोग उस फिरके के नहीं, खत्म हो गई बात। तो अब्बू हम इस फिरके, हम क्यों नहीं है? बेटा हम, हदीस में आता है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी। जब बच्चा आपका पूछे ना तो आप बताएं हदीस में आता है जो मेरे और सहाबा ने, क्योंकि सहाबा ने ये नहीं किया तो हम भी नहीं कर रहे। तो बेटा पूछेगा फिर ये क्यों कर रहे हैं? तो बेटा जो उनका काम है वो उनसे पूछने का है, वो मुझसे पूछने का नहीं है। अब बच्चा जाएगा उनसे पूछने के लिए, उसको बोले बेटा जब बड़े हो जाओगे ना फिर जाके पूछना, अभी पूछा तो रिप्लाई भी होगा। इससे क्या पैदा होगा? फितना। तो बच्चे में खोपड़ी होगी तो वो इतनी बात उसकी खोपड़ी में इंशाअल्लाह आ जाएगी, 2 और 2 4 की तरह। फिर बच्चा कहेगा हमें क्या करना चाहिए? उसको बता दो बेटा कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि इन अहकाम को फॉलो करना है। बनी इसराइल ने उन अहकाम को छोड़कर फिरके बना दिए। तो बेटा कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह कह रहा है इन अहकाम को फॉलो करो, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। समझते हो? बेटा हमने क्या करना है? अल्लाह की इबादत। अब्बू इबादत कैसे करनी है? बेटा 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है, ठीक है ना। जिंदगी में 1 दफा हज करना है बेटा, साल में 1 दफा ज़कात देनी है, उसके हकाम उलमा से पूछ लो। ये करना है हमने, मुहर्रम में भी करना है, सफर में भी करना है, रबीउल अव्वल में भी करना है और रबीउल सानी में भी करना है। जिसका जो हुक्म आता जाए, रमजान में रोजे रखने, हज के अय्याम में हज करना है, वो अल्लाह ने डेटें हमें बता दी। अब्बा मुहर्रम में क्या करना है? बेटा मुहर्रम में 9, 10 या 10, 11 का रोजा रखना है, और ज्यादा रोजे रख सकते हो तो सुभान अल्लाह। हदीस में आता है सबसे ज्यादा रमजान के बाद रोजों का सवाब किस महीने में मिलता है? मुहर्रम में मिलता है। बेटा हमने ये करना है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? और क्या करना है? और उससे बोलो कुरान में अल्लाह कहता है वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं, पुकारना नहीं है। सिर्फ या अल्लाह मदद, ना या अली मदद, ना या गौसे आदम मदद, ना या रसूल अल्लाह मदद। ये सारे नारे बेटा हम लोगों के बोलो नहीं। अच्छा अब्बू फला ने फला किताब में लिखा है कि या रसूल अल्लाह मदद, तो दायरे साम से खारिज है। बेटा कौन दायरे में दाखिल है, कौन खारिज है, ये तेरा हेडेक। क्योंकि बच्चे ने इसको ले लेके फिर वो फतवे देना शुरू, बेटा उसको छोड़ दे अपने हाल पे। मैं जो तूने करने के काम है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। वही है ना, एक आदमी रात को तहज्जुद में उठ के दुआ मांग रहा था, अल्लाह सारे लोग सो रहे हैं, मैं अकेला जागा हुआ हूँ, इस अमल की लाज रख ले, सारे लोग खराटे ले रहे हैं, मैं अकेला। लोगों ने कहा तू अपनी बातें बता, हमारी बुराइयां क्यों कर रहा है अल्लाह के सामने? एक आदमी ने कंबल निकाल के बोल रहा, भाई तू अपना बता ना, हमारी बुराइयां हमें क्यों साथ में घसीट रहा है, ये लोग सो रहे हैं। तो बेटा ये आपके करने का काम है, बाकी आप किसी भी फतवे, कौन या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कौन किसका क्या मतलब है, छोड़ो इस बहस को। इसमें फिर बड़ी तवील बहसें हैं, ये ऐसे दलदल में फंसोगे, निकलने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छा अब्बू और क्या करना है मैंने? तो उनको बताओ वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि एहसाना। बेटा माँ बाप के साथ क्या करना है? एहसान। कैसे एहसान करना है? अल्लाह कहते हैं ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कहना, उनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है, मोहब्बत से उनकी पेशानी पर देखने से हज उम्रे का सवाब मिलेगा। सबसे बड़ा हक अल्लाह रसूल के बाद किसका है? वालिदैन का। अब्बा और क्या करना है मैंने?
वबिल वालिदैनि ihsaना वबिदिल कुर्बा, बेटा जो रिश्ता जितना करीब है उससे बना के रखनी है। माँ बाप के बाद सबसे करीबी रिश्ता भाई बहनों का है, इनसे तोड़ने नहीं देखना, चाहे मुहर्रम हो चाहे सफर में हो। कोई रूठा हुआ है तो उसको जाके क्या कर लो, राजी कर लो, इन पे खर्च करो, हदिये दो, इनको नजराने दो, ताकि ये जुड़े। जो रिश्तेदारी तोड़ता है वो मुहर्रम में जो मर्जी कर ले, हदीस में आता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो रबीउल अव्वल में जो मर्जी कर ले। अब्बा और क्या करना है बेटा, रिश्तेदारी में सबसे पहला काम ये है, कुरान कहता है औरत की मीरास नहीं खाना। मैं मर जाऊं अपनी बहन की विरासत उससे पूछे बगैर फौरन हैंड ओवर कर देना। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? फौरन क्या कर देना, उसके हवाले कर देना, मैं मर जाऊं तो। ऐसा ना 20 साल तक मांगती रहे, या आप बोलो हमने जहेज इतना दे दिया था। और भी इस तरह के हकाम है जो सूरत बकरा में एक ही जगह अल्लाह ने वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, जब भी लोगों से बात करनी है अच्छे अखलाक से बात करनी, तमीज से बात किया करो। बेटा जब तुम बात करते हो तो लगता नहीं है कि तुमने तमीज कहीं से सीखी भी है। आहिस्ता आवाज में बात किया करो, धीमे लहजे में बात किया करो। ये तो ना कहें तमीज सीखी भी नहीं है फिर और बदतमीज बन जाएगा। तो वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना व अक़ीमुस्सलाह, नमाजों को पाबंदी से कायम करो। ये हमारा इस्लाम है जो मुहर्रम में भी है, सफर में भी है, रबीउल अव्वल में भी है। इसके अलावा जो कुछ है मेरे भाई वो हमारी अपनी इख्तिराआत हैं, ईजादात हैं, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे के बयान के बाद थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा, आप लोगों ने भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जाना है तो जा सकते हैं। ये मैंने आज बयान में जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए सैयदुश शुहदा का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो हदीस में ये हजरत हमजा के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसको करेक्शन कर लें। हजरत हसन और हुसैन को सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा।